I actually did. It's on the Where is it? Where is it? What? This is what happens when you don't rehearse. Don't go anywhere. Hello? Anybody back here? I bet this has, when you have it, could you bring it out to me? I bet this has never happened before. Oh, thank you. Ladies and gentlemen, Mackenzie. Mumbai. So much happening. So much happening. This is, as you know, India, very, very dear to the world's computer industry, central to the IT industry. At the center, at the core of the IT of just about every single company in the world. My industry, your industry, that we've built over the last several decades is going through fundamental change, seismic change, tectonic shifts. Let's talk about that today. But before we start, let me thank all of our partners. There are so many of you working with, please, thank you. Our incredible partners that we're working with here in India to transform the IT industry together. And so I'm delighted that all of you have joined us today. There are two fundamental shifts that are happening at the same time. This hasn't happened since 1964, the year after my birth. It wasn't because of my birth, but in 1964, the IBM System 360 introduced the world to the concept of IT, the IT industry as we know it, introduced the idea of general purpose computing. They described a central processing unit, a CPU, I/O subsystems, multitasking, the separation of hardware and application software through a layer called the operating system. IBM described family compatibility for applications so that you could benefit by the install base of your hardware to run your software over a long period of time. They described architectural benefit across generations so that the investment that you make in software, the investments you make in using the software is not squandered every single time you buy new hardware. They recognized in 1964 the importance of install base, the importance of software investment, the importance of building computers that run the software. Architecture discipline, all described in 1964. I've just described today's computer industry. The same industry that the India IT industry was built from. General purpose computing as we know it has existed for 60 years, until now. For the last 30 years, we've had the benefit of Moore's Law. An incredible phenomenon. Without changing the software, the hardware can continue to improve in an architecturally compatible way. And the benefits of that software doubles every year. As a result of doubling in performance every year, depending on what your applications, you're reducing your cost by a factor of 2 every single year. The most incredible depreciating force of any technology the world's ever known. By depreciation, cost reduction, it made it possible for society to use more and more of IT. As we continue to consume IT, as we continue to process more data,
Moore's Law made it possible for us to continue to drive down cost, democratizing computing as we know it today. Those two events, the invention of the System 360, Moore's Law with Windows PC, drove what unquestionably one of the most important industries in the world. Every single industry has subsequently been built on top of it, IT. But we know now that the scaling of CPUs has reached its limit. We can't continue to ride that curve, that free ride. The free ride of Moore's Law has ended. We have to now do something different, or depreciation will end. And we now will not enjoy depreciation, but experience inflation, computing inflation. And that's exactly what's happening around the world. We no longer can afford to do nothing in software and expect that our computing experience will continue to improve, that costs will continue to decrease, and continue to spread the benefits of IT and to benefit from solving greater and greater challenges. We started our company to accelerate software. Our vision was there are applications that would benefit from acceleration if we augmented general purpose computing. We take the workload that is very compute intensive and we offload it and we accelerate it using a model we call CUDA, a programming model that we invented called CUDA that made it possible for us to accelerate applications tremendously. That acceleration benefit has the same qualities as Moore's Law. For applications that were impossible or impractical to perform using general purpose computing, we have the benefits of accelerated computing to realize that capability. For example, computer graphics. Real-time computer graphics was made possible because of NVIDIA coming into the world and make possible this new processor we call GPUs. The GPU was really the first accelerated computing architecture running CUDA, running computer graphics, a perfect example. We democratized computer graphics as we know it. 3D graphics is now literally everywhere. It could be used as a medium for almost any application. But we felt that long-term, accelerated computing could be far, far more impactful. And so over the last 30 years, we've been on a journey to accelerate one domain of application after another. The reason why this has taken so long is simply because of this. There is no such magical processor that can accelerate everything in the world. Because if you could do that, you would just call it a CPU. You need to reinvent the computing stack from the algorithms to the architecture underneath and connect it to applications on top. In one domain after another domain, computer graphics is a beginning, but we've taken this architecture, CUDA architecture, from one industry after another industry after another industry. Today, we accelerate so many important industries. cuLitho is fundamental to semiconductor manufacturing, computational lithography, simulation, computer-aided engineering, even 5G radios that we've recently announced partnerships with, that we can accelerate the 5G software stack, quantum computing, so that we can invent the future of computing with classical, quantum, hybrid computing. Parabricks, our gene sequencing software stack. QVS, one of the most important things every single company is working on, is going from databases to knowledge bases so that we can create AI databases. Using QVS, we can create and vectorize all of your data. QDF, data frames. Data frames is essentially another word for structured data. SQL acceleration is possible with QDF. In each one of these different libraries, we're able to accelerate the application 20, 30, 50 times. Of course, it takes a rewrite of software, which is the reason why it's taken so long. In each one of these domains, we've had to work with the industry, work with our ecosystem, software developers and customers, in order to accelerate those applications for their domains. cuOpt, one of my favorites, combinatorial computing application, a very
compute-intensive application, for example, the travel salesperson problem. Every supply chain, every driver-rider combination, those applications could be accelerated with cuOpt, incredible speed up. Modulus, teaching an AI the laws of physics, not just to be able to predict the next word, but to be able to predict the next moment in time of fluid dynamics and particle physics and so on and so forth. And of course, one of the most famous application libraries we've ever created, called cuDNN, made it possible to democratize artificial intelligence as we know it. These acceleration libraries now cover so many different domains that it appears that accelerated computing is used everywhere. But that's simply because we've applied this architecture, one domain after another domain, that we've covered just about every single industry. Now, accelerated computing, or CUDA, has reached the tipping point. Several years ago, about a decade ago, something very important happened. And most of you have seen the same thing. AlexNet made a gigantic leap in the performance of computer vision. Computer vision is a very important field of artificial intelligence. AlexNet surprised the world with how much of a leap that it was able to produce. We had the benefit of taking a step back and asking ourselves, what are we witnessing? Why is AlexNet so effective? How far can it scale? What else can we do with this approach called deep learning? And if we were to find ways to apply deep learning to other problems, how does it affect the computer industry? And if we wanted to do that, if we believe in that future and we're excited about what deep learning can do, how would we change every single layer of the computing stack so that we could reinvent computing altogether? 12 years ago, we decided to dedicate our entire company to go pursue this vision. It is now 12 years later. Every single time I've come to India, I've had the benefit of talking to you about deep learning, had the benefit of talking to you about machine learning, and I think it's very, very clear now the world has completely changed. Now let's think about what happened. The first thing that happened, of course, is how we do software. Our industry is underpinned by the method by which software is done, the way that software was done. एक तरह से होता है ना कि अभी हो गया ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा आस्ते आस्ते करना लेना चालू कर दो। और एक्चुअली एफआई का जिस दिन सेलिंग रुकेगा और वो वापस आएंगे मार्केट में, तो यही सब जो सेक्टर थे उन्होंने जो बेचे थे वहीं पे वापस बाइंग होगी और होपफुली ये सेक्टर विल कंटिन्यू टू परफॉर्म डिसेंटली। मैं एक्चुअली आईटी में भी काफी वैल्यूएशन कंफर्ट देख रहा है। आप टीसीएस के रिजल्ट देख लिए आपने, इतने खास नहीं थे वैसे, लेकिन एचसीएल टेक के जो रिजल्ट थे वो काफी अच्छे थे। और एक्चुअली कल एक आईएसजी जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है आईटी के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए, उनका एक कॉल था, तो उन्होंने भी यही बोला कि इंडियन आईटी कंपनीज आस्ते आस्ते मार्केट शेयर गेन कर रही हैं और जो 100 मिलियन के छोटी वाली जो डील होती है, जो नॉर्मली डिस्क्रिशनरी डील होती है, वहां पे उन्होंने एक पिकअप देखा है होते हुए। तो ये सब जो है ना बहुत पॉजिटिव न्यूज है हमारी आईटी इंडस्ट्री के लिए। अक्टूबर महीने में एफआईएस की बिकवाली भी काफी ज्यादा हुई है। मंथली नंबर कुछ 65-70 हजार करोड़ तक पहुंच चुका है, विच इज आज तक का हाईएस्ट मंथली नंबर है। अगर वैल्यूएशंस पे बात करें तो वैल्यूएशंस के ऊपर तो काफी चर्चा हो चुकी है कि मार्केट के वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल लेवल से थोड़े हायर लेवल पे हैं। ऐसे समय में जहां पे ग्रोथ और ग्रोथ की विजिबिलिटी कम होगी, उन जगहों पे रिस्क बढ़ जाता है। तो जहां पे ग्रोथ ज्यादा अच्छी से नजर आ रही हो, क्वांटम भी अच्छा हो और सर्टेनिटी भी ज्यादा हो, उन एरियाज में रिस्क रिलेटिवली कम होता है। डोमेस्टिक सिक्लिकल्स काफी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे, एंड इसलिए उस स्पेस में ग्रोथ ज्यादा अच्छे से नजर आती है। मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस में जहां पे 10-12% की ग्रोथ आना मुश्किल हो रखा है, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में काफी एरियाज ऐसे हैं, स्पेशली जैसे कि पावर हुआ या प्रीमियम रियल एस्टेट है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में जैसे कि रिटेल जैसी स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसी स्पेसेस हैं और डिफेंस जैसी स्पेसेस हैं। यहाँ पे काफी हद तक ग्रोथ हायर डबल डिजिट्स में भी रह सकती है।
बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। कोई नई रिस्क पोजीशन डालें इस मार्केट में अगले 2 दिन के लिए, थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करें। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। आधे % के गैप के साथ आज निफ्टी 50 की शुरुआत बढ़िया होगी 125 पॉइंट ऊपर। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे माला माल। चार्ट सेटअप भी यहाँ पे बहुत अच्छा बढ़िया बना हुआ है। ट्रेड करा है 2783 पर। आई थिंक यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए मुनाफे की तैयारी। एक चेहरा जो मार्केट का हर मूव पहचानता है, एक चेहरा जो आपको मार्केट की बारीकियां समझाता है, एक चेहरा जिसे सिर्फ आपका मुनाफा दिखता है, एक चेहरा जिस पर पूरा इंडिया भरोसा करता है। देखिए मार्केटर्स अनुज सिंघल के साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। आ रहा है निवेश का सबसे बड़ा त्योहार। मोहरा ट्रेडिंग के लिए CNBC आवाज रहेगा तैयार देश के सबसे बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको बताएंगे मुनाफे वाले ट्रेड्स और वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स, जिससे संवत 2081 में आप बने समृद्ध और खुशहाल। देखिए मोहरा ट्रेडिंग सिर्फ CNBC आवाज पर। आ रहा है निवेश का सबसे बड़ा त्योहार। मोहरा ट्रेडिंग के लिए CNBC आवाज रहेगा तैयार देश के सबसे बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको बताएंगे मुनाफे वाले ट्रेड्स और वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स, जिससे संवत 2081 में आप बने समृद्ध और खुशहाल। देखिए मोहरा ट्रेडिंग सिर्फ CNBC आवाज पर। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट स्पीकर, तू तो भाई बहुत स्मार्ट है। बट स्टॉक ट्रेडिंग में ब्रोकरेज पे करना नॉट सो स्मार्ट। पर वो तो सभी लेते हैं। सब नहीं, ब्रोकरेज पे करना हुआ पुराना, अब तो है शून्य का जमाना। क्योंकि यहाँ इंट्राडे हो या डिलीवरी, स्टॉक्स हो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज हो या करेंसी, सब पर ब्रोकरेज 0 है। शून्य बाय फिनवेशिया, ट्रेड कमीशन फ्री। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. 10 के दिनदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के हेल्थ केयर और फार्मा बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। 2830 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट होगा 3950, जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। 24150 का एक जोन है, उसके नीचे अगर बंद हुए समझूंगा कि शायद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के लिए तैयार हो रहा है। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। यही एक एज ऑफ नाउ एक ऐसी पॉकेट ऑफ द मार्केट है जहां हम ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वहाँ पे चीपनेस है या वैल्यू है। लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसी सेगमेंट है जहाँ पे मतलब रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आप बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। हालांकि मतलब 12 से 15% की बुक की कंपाउंडिंग ज़रूर हो सकती है यहाँ पे, और कुछ अगर ऐसी कंपनीज है जहाँ पे वैल्यूएशन उनके लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन बैंड पे है, या ऐसे कुछ बैंक्स है, तो मुझे लगता है कि उधर शायद बुक वैल्यू कंपाउंडिंग से ज़्यादा रिटर्न आपको स्टॉक प्राइस में नज़र आ सकते हैं। हम जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में ज़्यादा प्रॉब्लम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स की रही है। सिस्टम में डिपॉजिट्स की किल्लत रही है और कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा रही है, उस हिसाब से मार्जिन की कंप्रेशन ज़्यादा रही है। तो मुझे लगता है कि द सेकंड फेज जहाँ वी स्टार्ट सीइंग सम बेटर लिक्विडिटी इन एनी केस दिख रही है, और कॉस्ट भी अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स भी अगर हम मॉडरेट होते हुए देखें तो शायद that can act as a possible a positive trigger. मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। बहुत ही शानदार ट्रेडिंग सेशन, खास तौर से अगर आप एडवांस क्लाइंट को देखें। इस मार्केट में अब लॉन्ग बने रहें। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। याद रखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे पाम तेल में, जहां पर 2 साल के हाईस पर प्राइसेस हैं। यहां से कहां जा सकती है रेंज बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहां पर मिलों की क्रशिंग यहां पर बहुत जल्द शुरू होने वाली है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर यूपी और सेकंड वीक ऑफ नवंबर में यहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी पिराई शुरू हो जाएगी। तो किस तरह के नंबर्स हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, हल्की मुनाफा वसूली आई है, तो क्या ये अच्छे लेवल्स हैं खरीदने के, ये भी बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं SD गुथरी के CEO संदीप भान, आइसा के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी एंड केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया। शुरुआत लेकिन यहाँ पर पाम तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर है। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को फिलहाल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। पाम में हमने करीबन 2 साल के हाईज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। अजय, आपसे पहले जान लेते हैं कि आपको क्या लगता है कहाँ जा सकती है मार्केट्स?
अजय आप म्यूट पर हैं। नहीं अजय, आपकी आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही है। पाम तेल आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने जोरदार तेजी बनते हुए देखी है। अगर पिछला एक महीना देखें तो करीबन 11% की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार है। एक्चुअली पाम में इसलिए भी तेजी है क्योंकि बाकी एडिबल ऑयल्स में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। अगर आप सोयाबीन उठा के देखें या पाम, कनोला, यहाँ पर वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ और साथ ही साथ इस साल में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है वो डबल डिजिट गेन यहाँ पर रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी की जो हाइक है उसका सीधा सपोर्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तेजी है उसका भी यहाँ पर असर है। अजय, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एडिबल ऑयल एज अ स्पेस को? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो काफी बड़ी गिरावट के बाद अब मार्केट अच्छा पॉजिटिवली मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो फैक्टर होता है कि पाम ऑयल को ट्रैक करना। जिस ढंग से पाम ऑयल में हमने 44 का एक लेवल होल्ड करने के बाद अब जो मोमेंटम बन रहा है ये मुझे लगता है 4650 4700 तक का भी लेवल दिखा सकता है। नो डाउट मलेशिया के जो एक्सपोर्ट एस्टिमेट्स आए हैं यहाँ से कुछ क्लैरिटी और बनते हुए दिखाई देगी, बट हम जानते हैं कि Q4 वैसे भी स्ट्रांग रहता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है टेक्निकली 4680 से 4700 तक हम रिंगिट में देख सकते हैं और उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट चाहे सन ऑयल हो चाहे कॉटन वॉश ऑयल हो सभी पे हम इस पे इंपैक्ट पॉजिटिव आते हुए देख पा रहे हैं। ओके साथ ही साथ बाकी एग्रो में अब यहाँ पर क्या सेंस है अजय, क्योंकि कुछ बहुत तेजी हमने यहाँ पर मसालों में बनते हुए देखी थी। बाजार का मानना है कि यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए लेकिन शॉर्ट नहीं करना चाहिए, तो विद इन दिस स्पेस आपकी एक बेस्ट पिक क्या होगी? बिल्कुल मंजय जी, अगर हम बात करें पूरे एग्री पैक में काफी पेसिमिज्म वॉल्यूम्स को लेकर भी था, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। खास करके सबसे पहले मैं हल्दी की बात करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि बैलेंस शीट काफी टाइट है, डिस्पाइट इट मार्केट बिल्कुल उठ नहीं रहा। अगर टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो ओआई में फॉल है, वॉल्यूम में फॉल है, प्राइस में फॉल है। ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का साइन देता है और विद टाइट बैलेंस शीट मुझे लगता है कि जल्द हम इसमें एक बड़ा जंप आते हुए देखेंगे, जहां पे 13,700 का भाव इस वक्त चल रहा है, 13,400 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए। 14,500 तक का लेवल हम देख पाएंगे क्योंकि इस बार रमजान भी जल्दी है और साथ में अभी जो जाती हुई मानसून की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका भी इम्पैक्ट हम देखेंगे। वहीं अगर जीरे की बात करें, कंफर्टेबल स्टॉक लेवल है जिसके कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायरवर्क्स नहीं है, बट मुझे लगता है 24,800 900 एक बेहतरीन लेवल है लेने के लिए क्योंकि रमजान की डिमांड इस बार जल्दी रहेगी। तो ओल्ड स्टॉक मार्केट में जल्दी निकलता हुआ दिखाई देगा जिसकी वजह से वापस 25,500 तक के लेवल देख पाएंगे। एंड लास्ट अगर हम धनिये की अगर बात करें तो धनिये के अंदर इस बार स्विंग कम रहने की उम्मीद है। पिछले 2-3 सालों से भाव बिल्कुल भी चले नहीं है और रिसेंटली हमने एक अच्छी खासी 12-15% की तेजी भी देखी 6800 से 7500 का। तो मुझे लगता है कि 7300 इज गुड टू बाय, 7200 का स्टॉप लॉस, 7600 तक का टारगेट हम धनिये में देंगे। तो पूरे मसाले में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। ऑलराइट, तो मसालों में खरीदारी की राय यहाँ पर है, सभी मसालों में तेजी है और वो टारगेट्स आपको यहाँ पर दिए ही गए हैं। लेकिन बात यहाँ पर फिर से खानों की तेलों की तरफ करते हैं और हमारे साथ अब एसडी गुथ्री इंटरनेशनल ट्रेडिंग के संदीप भान जुड़ चुके हैं। संदीप नमस्कार। मुझे याद है पिछले 2 बार आपने लगातार यहाँ पर तेजी की बात की है और हमने वो प्राइसेस यहाँ पर बनते हुए देखे भी हैं। 2 साल के हाईज पर अब यहाँ पर प्राइसेस वीक, मंथ, ईयर सब यहाँ पर अच्छी खासी तेजी के साथ बनता हुआ नजर आया है। एक्चुअली अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए तो 12% की बढ़त अब हमने यहाँ पर पाम तेल में आते हुए देखी है। क्या रीजंस हैं और अब यहाँ से क्या प्राइस सेंस है? देखिए, अभी जो इंडिया की ड्यूटी हाइक हुई थी उसके बाद इंडिया ने बड़ी एग्रेसिव बाइंग की, उसके चलते वो बाजार 4100 से 43-4400 रिंगिट ऑन द फ्यूचर्स मार्केट तक आ गया था। उसके बाद इंडिया की बाइंग थोड़ी सी थम गई, रुक गई और चाइनीज फंड्स का मार्केट में रूमर आ गया कि वो बाइंग में आ गए और उन्होंने चलते चलते इस प्राइस को 4600 तक ले गए। अभी आज के इस फंडामेंटल्स को बेसिस पर देखते हुए अब एंटिसिपेशन ऑफ इंडियन बाइंग इन कमिंग मंथ्स एंड चाइनीज बाइंग फॉर द चाइनीज न्यू ईयर प्लस फेस्टिवल डिमांड ऑफ ईद की जो आने वाले अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में आएगी, इन सब को देखते हुए जो फिजिकल डिमांड की एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सप्लाई की, जो वो चीज इसको बाजार को ऊपर में बनाए रख रहा है। क्योंकि 44 के लेवल्स हम यहाँ पर संदीप देख चुके हैं, क्या और हायर हाईज यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे गिवन द फैक्ट कि प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में भी हमने एक्सपोर्ट के नंबर्स और प्रोडक्शन दोनों ही यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड देखी है? देखिए, मार्केट्स ग्लोबली एवरी मार्केट हैज नाउ टू एडजस्ट टू दिस हाई प्राइसेस। अभी एडजस्टमेंट ऑफ कई मार्केट्स ने इन प्राइसेस को डाइजेस्ट करा नहीं है। एट करंट लेवल्स फिजिकल बाइंग बहुत रुक गई है।
जिसके चलते ऐसा अब थोड़ा टाइम लगेगा इस मार्केट को फ्रेश प्राइसेस को एक्सेप्ट करने में। क्या ये प्राइसेस मार्केट एक्सेप्ट करेगा? वी हैव टू सी दैट। द ओनली थिंग इस टाइम व्हाट फेवर्स पाम इज, अभी सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई है नहीं इतनी, सनफ्लावर इज शॉर्ट इन सप्लाई। देन वी आर डिपेंडेंट नाउ ऑन सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल का चैलेंज अभी ये है कि आप अगर आज सोयाबीन ऑयल खरीदते हैं तो आते आते फरवरी मार्च में आ जाएगा अगले साल। नवंबर दिसंबर शिपमेंट वुड बी बेसिकली फरवरी मार्च अराइवल, एंड द ओनली ऑप्शन फॉर दिस पीरियड अगले 3-4 महीने में है इज एवरीबडी इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन पाम, और पाम की सप्लाई आने वाले महीनों में घटती ही जाएगी, कम होती जाएगी। उतनी सप्लाई है नहीं कंपेयर टू द डिमांड दैट वी फोरसी इज कमिंग। दिस शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम other oils to palm is going to continue to lend support to the palm. पर इस prices पे अब what is critical is whether globally all markets will digest these prices. Right, digesting is one part, लेकिन संदीप अब यहाँ से prices कहाँ जा रहे हैं? 45, 46, या आपको लगता है जब तक ये current prices digest नहीं होंगे तब तक हम शायद अब इसको consolidate होता हुआ देखेंगे current levels पे? Yes, I do feel that we are in a consolidation mode. 45-4600 के आसपास अब consolidation होना चाहिए. Market is into a heavily overbought conditions, so we have to see some technical correction, but that correction will not be a huge correction. और वो correction कहाँ तक आ सकती है? I feel maybe 100-150 ringgit correction should be there. ऑलराइट, और एक फाइनल सवाल यहाँ पर, जैसे पाम तेल में जो तेजी है वही चीज़ हमने बाकी एडिबल ऑयल्स में भी आते हुए देखी है, क्योंकि अगर इस साल की बात की जाए तो सन, कनोला, सोयाबीन, इंटरनेशनल मार्केट्स में सभी जगह यहाँ पर तेजी रही है। आपको लगता है ये ओवरऑल ट्रेंड इस क्वार्टर में और अगले साल के पहले क्वार्टर में जारी रहेगा? सारे अदर एडिबल ऑयल्स को जो अब स्ट्रेंथ है मेजरली इट्स कमिंग फ्रॉम पाम। ओके, आज पाम सब, it used to be a time couple of years back when other oils would give support to palm. Now we are in a reverse direction. Now palm is giving support to the other oils. ऑल राइट, क्लियरली संदीप ये दिवाली आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। जिस तरह की तेजी पाम में हमने आते हुए देखी है, जैसी डिमांड यहाँ पर आते हुए नजर आई है, और जो आपने फोरकास्ट प्रेडिक्शंस की थी वो भी एब्सोल्युटली ऑन द मार्क रही है। जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर प्राइसेस में बनते हुए देखी है। एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उसका एनालिसिस भी करने के लिए। थैंक यू। वेल, ये तो बात हुई पाम तेल की और खाने के तेलों की, जहां पर जोरदार तेजी है, लेकिन बात अब यहां पर चीनी की कर लेते हैं। और हमारे साथ आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी है। प्रफुल्ल जी नमस्कार। ये एक और सेगमेंट है जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में पिछले एक साल में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। मंथ ऑन मंथ पॉजिटिव है, ईयर ऑन ईयर YTD ऑफ कोर्स एक गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि हमने 23-24 तक के लेवल्स यहां पर बनते हुए देखे थे। अब क्योंकि क्रशिंग सीजन एकदम करीब है, आप क्या क्यूज लेके इस फेस्टिवल सीजन, इस क्रशिंग सीजन में जा रहे हैं? फेस्टिवल सीजन में यही है कि अगला एक साल इंटरनेशनली शुगर के लिए काफी अच्छा रहेगा, इंडिया के लिए नहीं रहेगा। इंडिया के लिए नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 8 मिलियन टन का है, और गवर्नमेंट ने अभी आज के कोई बिजनेस न्यूज़पेपर पे देखा गया है कि MSP नहीं बढ़ाने वाले हैं, और इथेनॉल के प्राइसिंग का भी कोई अता पता दिखता नहीं है। तो ये इंडस्ट्री और फार्मर्स के लिए नेगेटिव है, ज़्यादातर फार्मर्स के लिए नेगेटिव है और इंडस्ट्री के लिए नहीं है। जबकि इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो ब्राज़ील में ड्रॉट, फायर, ये सब चीज़ें जो इंसिडेंट हुई है, तो वहाँ का प्रोडक्शन नीचे होने जा रहा है, और टोटल वर्ल्ड में जो अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर है वो भी एक साल के लिए अभी क्रिटिकल रहने वाली है। तो एक्सपोर्ट का दायरा तो खुल जाएगा, पर एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक में अभी एक उम्मीद लास्ट बची है, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस ढंग से MSP के और इथेनॉल के न्यूज़ आ रहे, कहीं पॉजिटिवनेस दिख नहीं रही है, और पूरा शुगर सेक्टर रेगुलेटेड इस तरह से जैसे ED संभाल रहा हो। तो हमारे पास तो कोई उम्मीद बची नहीं है इंडियन इंडस्ट्रीज और फार्मर्स दोनों के लिए। प्रफुल्ल जी, वो तो बात सही है, लेकिन क्रशिंग सीजन जल्दी यहाँ पर शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ जो एथेनॉल के टेंडर्स हैं वो भी यहाँ पर मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। प्राइस में यहाँ पर हमने रिवीजन आता हुआ नहीं देखा, तो एज एन इंडस्ट्री फिर ये सारी डेवलपमेंट्स कैसे आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं इन सबको? मनीषा जी, आपकी बात एकदम सही है कि जो इथेनॉल का एलोकेशन आया है वही एक मरते हुए को पानी पिला रहा है। एक ऐसा हो गया है कि रिसर्च एनालिस्ट की पेपर्स पर से 3.7 मिलियन टन का स्टॉक कम हो गया। जैसे 8 मिलियन टन में आपको ओपनिंग स्टॉक बोल रहा हूँ, तो
तो 8 में से ये 4 मिलियन टन कम हो जाता है, तो अभी वी आर ओपन विथ ओनली 4 मिलियन टन ऑफ शुगर, जो कि हमारे पास 8 मिलियन टन शुगर है। पर जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें अपने को ये दिखा जाएगा कि 4 मिलियन टन का ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और सबमिशन भी हो गया है। शुगर केन जूस जो है उससे करीबन 32 लाख टन चला जाएगा, और जो बी हेवी मोलासिस है उससे करीबन 6, तो 38 लाख टन का तो वही चला जाता है। 78 का ओपनिंग स्टॉक में से 38 जाने से 40 लाख टन बचता है शक्कर, और ये पॉजिटिव एक थियरी बनती है। पर जैसे आइसा की ओर से मैंने काफी बार आपके चैनल से बोला है कि हम एमएसपी की जो इंक्रीमेंट चाहते हैं वो हम इसलिए चाहते हैं कि सीजन के टाइम पे बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीनी बिकी नहीं जावे। हमको इन्फ्लेशन बढ़ाने के मूड में नहीं है। अभी देखिए ऐसा ही हो गया, तो आज सोलापुर में करीबन 34.70 में चीनी बिक गई। अब कहाँ पे 35.5 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और 80 पैसा नीचे अगर इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे बेचने लगेगी, तो ये जो फैक्टर है वो सिर्फ 7 या 8% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रीज है, जिसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होने से उन बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेच के जाते हैं, और पॉलिटिकली भी रिलेटेड रहती है कि इलेक्शन के टाइम में फार्मर को पैसा दिया जाए, तो ये गलत भाव में बेच के जाते हैं। पर वो 92 जो सिंसियर और रियल इन्वेस्टर और जो रियल इंडस्ट्री चलाते हैं, वो 92% इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी तकलीफ की बात हो जाती है 4 महीने के लिए। तो अगर आपको नई शुगर मिल लगानी है तो यही समझ के चलो कि जो सीजन के 5 महीने है वहां पे नुकसानी करो, 7 महीने में गवर्नमेंट माई बाप है, कुछ मेहरबानी हो गई आपकी तो आप संभल लो अपने आप को। ऑल राइट, प्रफुल्ल विटलानी जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कहा गया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 8 मिलियन टन के आसपास का है, और जो नंबर्स यहाँ पर फिलहाल निकल के आ रहे हैं थोड़ा प्रेशर दिला सकते हैं अगर सरकार ने यहाँ पर मिनिमम सेलिंग प्राइस और साथ ही साथ एथेनॉल की प्राइस रिविजन यहाँ पर बहुत जल्द नहीं दिया तो। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे सोने चांदी के प्राइसेस की। आज के ज़माने में जब ईमेल फ्री, सोशल मीडिया फ्री, यहाँ तक कि ऑनलाइन पेमेंट भी फ्री ऑफ चार्ज होती है, तो ब्रोकरेज क्यों पे करना ब्रो? मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करता हूँ शून्य ऐप पे। क्योंकि यहाँ इंट्राडे हो या डिलीवरी, स्टॉक्स हो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज हो या करेंसी, सब पर ब्रोकरेज जीरो है। शून्य बाय फिनवेशिया, ट्रेड कमीशन फ्री। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हेलो। जहाँ गोदरेज होम लॉकर हो, उस घर की खुशियाँ कोई नहीं चुरा सकता। गोदरेज होम लॉकर्स, खुशियों के रखवाले। आ रहा है निवेश का सबसे बड़ा त्योहार। मोरा ट्रेडिंग के लिए CNBC आवाज रहेगा तैयार। देश Blackwell, we have all of the libraries, acceleration libraries that we were talking about before, but on top there are two very important platforms we're working on. One of them is called NVIDIA AI Enterprise, and the other is called NVIDIA Omniverse, and I'll explain each one of them very quickly. First, NVIDIA AI Enterprise. This is a time now where the large language models and the fundamental AI capabilities have reached a level of capabilities we're able to now create what is called agents. Large language models that understand the data that, of course, is being presented. It could be streaming data, it could be video data, language model data, it could be data of all kinds. And the first stage is perception. The second is reasoning about, given its observations, what is the mission and what is the task it has to perform. In order to perform that task, the agent would break down that task into steps of other tasks. And it would reason about what it would take, and it would connect with other AI models. Some of them are good at, for example, understanding PDF. Maybe it's a model that understands how to generate. Well, as जैसे जैसे हम दिन में आगे जाएंगे, हम आपको वो विजुअल्स और वो फायरसाइड चैट जिसका आपको इंतजार है, जहां पर NVIDIA के जेंसन और ऑफ कोर्स मुकेश धीरूभाई अंबानी यहां पर बहुत जल्दी बातचीत करेंगे, और तब तक ये आते हुए वहां के विजुअल्स हैं। लेकिन बात तब तक, जब तक हम उसका इंतजार करते हैं, यहाँ पर सोने चांदी के प्राइसेस को एक बार देख लेते हैं, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ कल कारोबार था। आज जो करंट लेवल्स हैं, जहां पर थोड़ी सी करेक्शन हम आता हुआ देख चुके हैं, जो शायद मच नीडेड भी थी, जिस तरह का 1
91 ऑल टाइम हाईज दोनों ही कमोडिटीज यहां पर बना रही थी। अब इस करंट लेवल्स पे आप क्या करने की राय देंगे इन्वेस्टर्स को, खरीदारों को? मुझे जी लॉन्ग टर्म व्यू में कोई चेंजेस नहीं है। जिस ढंग से हमने गिवन डेटा पॉइंट बोल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो, कल भी हमने बैंक ऑफ कनाडा का रेट कट देखा, तो ये लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली इंटैक्ट रखता है और जो मार्च तक मुझे लगता है $3000 डेफिनेटली दिख जाएगा। M6 पे हम 84 85 देख रहे हैं, बट जो कल का फॉल बैक था वो जैसे आपने बताया मस्ट डिजिट था, क्योंकि RSI 80 के ऊपर पहुंच चुकी थी और ऐसे टाइम पे करेक्शन दिया था। मुझे लगता है कि अगला 2 दिन, आज और कल का जो डेटा पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका देता है। तो दिन में तो मार्केट मुझे तेज लग रहा है, जो 78 पे लेके चलिए, 77,700 का स्टॉप लॉस, लेकिन अपसाइड बहुत ही लिमिटेड रहेगा, 78,500 तक जाएगा और वहां से एक करेक्शन अभी भी ड्यू है, क्योंकि नया ट्रिगर अभी एज ऑफ नाउ दिख रहा नहीं। डॉलर इंडेक्स भी 104 के ऊपर आ चुका है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एक माइटी फिगर 1 लाख का था, जो पिछले काफी समय से हम वेट कर रहे थे, वो कल हमने 1,01,000 के आसपास 1 लाख का लेवल टच किया और वहां से गिरावट आई। इसका मतलब है एक सेंटीमेंट बन चुका है लोगों का कि लाख हो चुकी है चांदी, बट चांदी में भी जिस्ट काफी ज्यादा बाकी है। टाइमिंग आज दिन के सेशन में चांदी में एक बाउंस मिल सकता है जो करीबन 97,800 98,000 के आसपास रहेगा, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। एक प्रॉफिट बुकिंग जो कल से स्टार्ट हुई है वो मुझे लगता है कल शुक्रवार भी कंटिन्यू रहेगा। जो नीचे में बेस मुझे लगता है 95 तक मिलेगा, वहां पे रिव्यू करके फिर से लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना चाहिए। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी गिरावट है, बट अभी भी अगर हम महीने 1.5 महीने की बात करें तो बाय ऑन ड्रॉप का ही रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। ऑलराइट, तो यानी कि कुछ करेक्शंस यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में आती रहेंगी, लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, तेजी आगे बरकरार है और आप डिप्स पे खरीदारी करके ही अपना पोर्टफोलियो फिलहाल यहाँ पर बनाएं। अजय, मेटल्स पे आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स उठापटक यहाँ पर भी है, लेकिन बाजार ने काफ़ी भरोसा जताया है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स का। एल्यूमिनियम स्पेशली क्योंकि 4 महीने के हाईज के बहुत करीब अब यहाँ पर कारोबार है। बिल्कुल, पूरे बेस मेटल में काफी सरप्राइजिंग रहा कॉपर, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसमें सबसे खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है पहला एल्यूमिनियम, फिर जिंक और लास्ट है कॉपर। तो एल्यूमिनियम में हमने देखा कि चाइना थोड़े बहुत चाइना से वापस बाइंग एक्टिविटी बढ़ी है, जो स्टेप्स लिए गए हैं। रशियन या बॉक्साइट की बात करें तो वहां पे भी हमने थोड़ा सा टाइटनेस देखा है, जिसकी वजह से रैली बनी है। टेक्निकल चार्ट पे 240 के ऊपर ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, जो मुझे लगता है करीबन 248 तक का लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल पे बाइंग कीजिए, 237 का स्टॉप लॉस लगाइए, हफ्ते भर का व्यू लीजिए जो 248 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं सबसे ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग अब जो दिख रहा है वो दिख रहा है जिंक, क्योंकि डिस्पाइट जो 15 दिनों में हमने हैवॉक देखा, बेस मेटल में गिरावट देखी, बट जिंक ने कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मुझे लगता है ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। करंट लेवल से भी एंटर कीजिए, 286 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 312 तक के लेवल हम जिंक में देखेंगे। लास्ट अगर कॉपर की बात करें, अभी तक ये पार्टिसिपेशन बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है, बट गिवन कि बाकी बेस मेटल में रिकवरी बन रही है और जो स्टिमुलस है उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा, स्लो एंड स्टडी मूव करेगा करंट लेवल से, इसमें भी बाइंग करना चाहिए। नेक्स्ट मंथ में जो 840 का भाव चल रहा है, 834 का स्टॉप लॉस लगाइए, 855 तक का लेवल हम नेक्स्ट मंथ फ्यूचर देख पाएंगे। ऑल राइट, सो तेजी यहाँ पर आगे भी बरकरार है, स्पेशली मेटल्स में देखते हुए। इवन एज डॉलर इंडेक्स आज यहाँ पर 104 के ऊपर कारोबार कर रहा है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि चाहे वो सोना चांदी है या फिर काफ़ी सारे ये सारे मेटल्स हैं, यहाँ पर तेजी बरकरार है। अजय, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो ऑफकोर्स नजर रखेंगे उस NVIDIA AI समिट पर और साथ ही साथ बात करेंगे इक्विटीज की। मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको बताएंगे मुनाफे वाले ट्रेड्स और वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स, जिससे संवत 2081 में आप बने समृद्ध और खुशहाल। देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ CNBC आवाज पर। 10 के दिनदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के हेल्थकेयर और फार्मा बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। 2830 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट होगा 3950, जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। 24,150 का एक जोन है, उसके नीचे अगर बंद हुए समझूंगा कि शायद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के लिए तैयार हो रहा है। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। यही एक एज ऑफ नाउ एक ऐसी पॉकेट ऑफ द मार्केट है जहां हम ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वहाँ पे चीपनेस है या वैल्यू है। लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसी सेगमेंट है जहाँ पे मतलब रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आप बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। हालांकि मतलब
12 से 15% की बुक की कंपाउंडिंग ज़रूर हो सकती है यहाँ पे। और कुछ अगर ऐसी कंपनीज है जहाँ पे वैल्यूएशन उनके लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन बैंड पे है, या ऐसे कुछ बैंक्स है, तो मुझे लगता है कि उधर शायद बुक वैल्यू कंपाउंडिंग से ज़्यादा रिटर्न आपको स्टॉक प्राइस में नज़र आ सकते हैं। हम जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में ज़्यादा प्रॉब्लम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स की रही है, सिस्टम में डिपॉजिट्स की किल्लत रही है और कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा रही है। उस हिसाब से मार्जिन की कंप्रेशन ज़्यादा रही है। तो मुझे लगता है कि द सेकंड फेज जहाँ वी स्टार्ट सीइंग सम बेटर लिक्विडिटी इन एनी केस दिख रही है, और कॉस्ट भी अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स भी अगर हम मॉडरेट होते हुए देखें, तो शायद दैट कैन एक्ट एज अ पॉसिबल पॉजिटिव ट्रिगर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। बहुत ही शानदार ट्रेडिंग सेशन, खास तौर से अगर आप एडवांस क्लाइंट को देखें। इस मार्केट में अब लॉन्ग बने रहें। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। याद रखिएगा, एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग एक्सपेक्ट करना वो मुश्किल है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ स्टॉक डे हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हुए हैं। 331 यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए कमाई का अड्डा। आपको अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बस होल्ड करना है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देख के यहाँ पे कोई रणनीति बनाइए, शॉर्ट जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 182 का एंड स्टॉप लॉस 174.30 का। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। खुलते ही मार्केट उनको मुनाफा देगा जो कल लॉन्ग लेके गए। पहला सौदा CNBC आवाज पर। अक्टूबर महीने में FIs की बिकवाली भी काफी ज्यादा हुई है। मंथली नंबर कुछ 65-70 हजार करोड़ तक पहुंच चुका है, विच इज आज तक का हाईएस्ट मंथली नंबर है। अगर वैल्यूएशंस पे बात करें तो वैल्यूएशंस के ऊपर तो काफी चर्चा हो चुकी है कि मार्केट के वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल लेवल से थोड़े हायर लेवल पे हैं। ऐसे समय में जहां पे ग्रोथ और ग्रोथ की विजिबिलिटी कम होगी, उन जगहों पे रिस्क बढ़ जाता है। तो जहां पे ग्रोथ ज्यादा अच्छी से नजर आ रही हो, क्वांटम भी अच्छा हो और सर्टेनिटी भी ज्यादा हो, उन एरियाज में रिस्क रिलेटिवली कम होता है। डोमेस्टिक सिक्लिकल्स काफी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे, एंड इसलिए उस स्पेस में ग्रोथ ज्यादा अच्छे से नजर आती है। मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस में जहां पे 10-12% की ग्रोथ आना मुश्किल हो रखा है, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में काफी एरियाज ऐसे हैं, स्पेशली जैसे कि पावर हुआ या प्रीमियम रियल एस्टेट है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में जैसे कि रिटेल जैसी स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसी स्पेसेस हैं और डिफेंस जैसी स्पेसेस हैं। यहाँ पे काफी हद तक ग्रोथ हायर डबल डिजिट्स में भी रह सकती है। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। कोई नई रिस्क पोजीशन ना लें इस मार्केट में अगले 2 दिन के लिए, थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करें। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। आधे % के गैप के साथ आज निफ्टी 50 की शुरुआत बढ़िया होगी 125 पॉइंट ऊपर। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे माला माल। चार्ट सेटअप भी यहाँ पे बहुत अच्छा बढ़िया बना हुआ है। ट्रेड करा है 2783 पर। आई थिंक यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए मुनाफे की तैयारी। The brokerage you pay today may not seem much, but over time it can amount to a lot. Shunya by Finvesia, a brokerage-free investment platform for all. Intraday or delivery, cash or futures and options, commodities or currency. There's absolutely no brokerage. Shunya by Finvesia, trade commission free. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एक चेहरा जो मार्केट का हर मूव पहचानता है। एक चेहरा जो आपको मार्केट की बारीकियां समझाता है। एक चेहरा जिसे सिर्फ आपका मुनाफा दिखता है। एक चेहरा जिस पर पूरा इंडिया भरोसा करता है। देखिए मार्केटर्स अनुज सिंघल के साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। आ रहा है निवेश का सबसे बड़ा त्योहार। मोरा ट्रेडिंग के लिए CNBC आवाज रहेगा तैयार देश के सबसे बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको बताएंगे मुनाफे वाले ट्रेड्स और वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स, जिससे संवत 2081 में आप बने समृद्ध और खुशहाल। देखिए मोरा ट्रेडिंग सिर्फ CNBC आवाज पर।
10 के दिनदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के हेल्थ केयर और फार्मा बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। 2830 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट होगा 3950, जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। 24,150 का एक जोन है, उसके नीचे अगर बंद हुए समझूंगा कि शायद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के लिए तैयार हो रहा है। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। यही एक एज ऑफ नाउ एक ऐसी पॉकेट ऑफ द मार्केट है जहां हम ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वहाँ पे चीपनेस है या वैल्यू है। लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसी सेगमेंट है जहाँ पे मतलब रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आप बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। हालांकि मतलब 12 से 15% की बुक की कंपाउंडिंग ज़रूर हो सकती है यहाँ पे, और कुछ अगर ऐसी कंपनीज है जहाँ पे वैल्यूएशन उनके लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन बैंड पे है, या ऐसे कुछ बैंक्स है, तो मुझे लगता है कि उधर शायद बुक वैल्यू कंपाउंडिंग से ज़्यादा रिटर्न आपको स्टॉक प्राइस में नज़र आ सकते हैं। हम जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में ज़्यादा प्रॉब्लम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स की रही है। सिस्टम में डिपॉजिट्स की किल्लत रही है और कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा रही है। उस हिसाब से मार्जिन की कंप्रेशन ज़्यादा रही है। तो मुझे लगता है कि द सेकंड फेज जहाँ वी स्टार्ट सीइंग सम बेटर लिक्विडिटी इन एनी केस दिख रही है, और कॉस्ट भी अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स भी अगर हम मॉडरेट होते हुए देखें, तो शायद that can act as a possible a positive trigger. मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। बहुत ही शानदार ट्रेडिंग सेशन, खास तौर से अगर आप एडवांस डिक्लाइन को देखें। इस मार्केट में अब लॉन्ग बने रहें। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। याद रखिएगा, एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग एक्सपेक्ट करना वो मुश्किल है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ स्टॉक डे हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हुए हैं। 331 यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए कमाई का अड्डा। आपको अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बस होल्ड करना है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देख के यहाँ पे कोई रणनीति बनाइए, शॉर्ट जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ। इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 182 का एंड स्टॉप लॉस 174.30 पर। बुल या बियर के नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, फ्यूचर्स पे और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पे और कुछ अर्निंग से बातचीत करेंगे आज फ्यूचर एक्सप्रेस में। मेरे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगी सोनी पटनायक टेक्निकल्स पे और फिर डेरिवेटिव से बातचीत करने के लिए। मेन वेल जरा आज की जरा आप एक सुपर हाईलाइट लेके आइए। दैट्स आई थिंक निफ्टी बैंक जो करीब 51,627 ऑलमोस्ट अभी भी डे हाई की डिरेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी अभी भी करीब 24,400 के जोन में। आज लॉसेस बड़े थे एक समय के लिए, लेकिन 354 के आसपास जाके ये अरेस्ट हुए। उसके बाद एक हल्का सा पुल बैक, अब 24,400 की डिरेक्टरी मेंटेन करके चल रहा है। आज सुबह की स्ट्रेटजी का वीडियो देखिएगा एक बार। आज दो बातें हुई थी। कल एक बाजार का पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन के ऊपर क्लोज होना, इसीलिए फॉल अरेस्ट है आज सीमित दायरे की गिरावट है। और दूसरी चीज़ आपने एक देखी थी जो हमने निफ्टी बैंक में बात की थी, HDFC बैंक, उसका थ्रस्ट। और प्लीज़ जरा एक बार डायरेक्टर साहब बोले आइएगा, जो हमने आज बैंक निफ्टी के ऑप्शन पिरामिड्स को रीड किया था, क्या कहा था आज हमने सुबह बातचीत में डिस्कस क्या किया था कि कल बावजूद इसके कि निफ्टी बैंक 51,200 पे क्लोज हुआ था, जो पुट राइटर्स का कन्विक्शन था, इन द मनी पुट राइटर्स का कन्विक्शन, वो कुछ थोड़ा डिफरेंट था। प्राइस कहाँ क्लोज हुआ था? 51,200 पे। बिकी क्या हुई है? 51,300, 400, 500 की पुट। दैट वाज इंटरेस्टिंग, और इसी बात पे मैंने फोकस किया था। जरा निफ्टी बैंक लेके आइए और उसके लेवल्स लेके आइए। एनी टिप टुवर्ड्स बेस 1 हम बाय करेंगे। 51,200, 51,100, 51,000 जो ट्रैजेक्टरी मिले उसको बाय करना है। और याद रखिएगा, द मोमेंट यू विल क्रॉस 51,539, जैसे ही पार होगा आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 578, और अभी तक का स्विंग हाई जो है वो 781 है। तो बैंक निफ्टी ने बिल्कुल उन ऑप्शन राइटर्स के जिस प्रकार के कन्विक्शन थे उस पर रिएक्ट किया है। हालांकि श्रेय जो है वो नो डाउट अबाउट दैट कि HDFC बैंक को जाता है। देखिए, वो ट्रेड आपको मिल गया होगा तो मैं आपको कहूँगा कि अच्छा है, एक बार निपटा के बैठिए। पूछिए क्यों। आज का इंट्राडे वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री है, हाई जो है
अभी का CMP, जरा निफ्टी ले आइए दोबारा, निफ्टी बैंक अभी का CMP है 10 डे और आज का इंट्राडे हाई है एग्जैक्टली 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द कमेंसमेंट ऑफ न्यूली फ्रेश वीकली कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एक माइलस्टोन अचीव करना है तो आपने वो कर चुके हैं। अब मूव तब आएगा जब आप 810 के ऊपर सस्टेन कर जाएं या फिर दोबारा कोलैप्स होकर आप 51,200 के आसपास मिले। बट जरा एक बार ऑप्शन राइटर्स को देखते हैं, ऑप्शन राइटर्स कर क्या रहे हैं। आप एक चीज़ देखेंगे कि 51,500 पे पुट राइटिंग है। दैट मीन्स जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि एक डिप आया टुवर्ड्स 51,200 300 वो शायद मिले ना, शायद, और मिल जाए तो अच्छी बात है। हमारे पास वेल डिफाइंड ट्रैजेक्टरी है 51,100 की 200 की। बट आप सुभान अल्लाह, हम निफ्टी बैंक की बात करें डॉक्टर साहब, जरा प्लीज़ निफ्टी बैंक के ऑप्शन राइटर्स को रखिएगा स्क्रीन पे। थोड़ा सा विचलित लग रहे हैं डॉक्टर साहब इस वक्त। ये देखिए 51,500 10 लाख फुट बिकी है यहाँ पे, 9 लाख फुट बिकी हैं 51,300 की 200 की करीब 6.25 लाख, और कॉल राइटर्स नहीं है। और इंटरेस्टिंगली जो कॉल राइटर बड़ा विजिबल है वो है 52,000 पे। दैट मीन्स अगर 51,810 की ट्रेजेक्ट्री दैट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार होता है तो ए स्विंग टुवर्ड्स 52,000 52,050 लुक्स पॉसिबल, और वो हो सकता है क्योंकि इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है HDFC बैंक। अब आते हैं निफ्टी पर। देखिए निफ्टी पर मैंने एक बात कही थी कि हम सेल और सेल एंड राइज की ट्रैजेक्टरी में अभी भी हैं। जब तक कि पिछले सेशन के कॉल राइटर्स के जोन को आप लांग ना जाएं, पार ना कर दें, इट विल बी सेल एंड राइज। RS1 लेके आइएगा। क्या ट्रैजेक्टरी थी? आज सुबह का निफ्टी का हाई देख लीजिए और करीब करीब आज सुबह का अगर आप देखें तो आज निफ्टी कमेंट्री देख लीजिए। एनी पुल बैक टुवर्ड्स 560 641 इट विल बी सेल एंड राइज, और नीचे की तरफ लगभग 389 और 288 इस क्लस्टर में आके अपने शॉट को कवर करना है। बट मैंने एक बात भी कही थी, जब आपको एक डाउन स्विंग मिल जाए ना आज, तो चांसेस है कि निफ्टी रेंज बाउंड हो जाए। उसके बाद एक पुल बैक के बाद निफ्टी रेंज बाउंड हो जाए। क्या लाइन थी वो? आफ्टर ए सब्सटेंशियल गैप डाउन बेस वन विल बी पॉसिबली जनरेट अ पुल बैक, और उस पुल बैक के बाद निफ्टी माइट बी रेंज बाउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करने वाले भी कुछ स्टॉक्स हैं, आपकी वीकनेस को स्पॉन्सर करने वाले भी स्टॉक्स हैं। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक बार जरा देखिए आप, एक 24,400 की पुट कॉल दोनों की पैरिटी को देखिए आप। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों पे ही हावी हैं। दैट मीन्स एक स्ट्राइक पे कॉल और पुट राइटर्स का बिल्डअप का होना वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद इंडेक्स अब यहाँ पे इस रेंज को थाम के बैठना चाहता है। आउट ऑफ द आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6.2 CR इंट्राडे में बिल्डअप हुआ है करीब करीब 5 करोड़ 30 लाख का, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि माइट बी निफ्टी इस क्लस्टर में थोड़ा टाइम स्पेंड करे और वो एक वाजिब दिन हो सकता है। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपका टेक निफ्टी पर, इंडस्ट्रीज को आप कैसे अप्रोच कर रही हैं इस वक्त? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए मुझे लगता है निफ्टी आज 24,500 पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर उसको क्रॉस करता है कहीं ना कहीं एक्सपायरी मूव रिलेटेड, सो थोड़ा सा वहां पे एक स्विंग आपको 24,600 के लेवल्स तक भी एक बार नजर आ सकता है। अभी तक होल्ड कर रहा है सपोर्ट 24,400 24,370। ये जो 30 पॉइंट्स का सपोर्ट है काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत क्रूशियल भी प्ले कर रहा है। अगर होल्ड करता है सपोर्ट तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको सेकंड हाफ में नजर आ सकती है। बट ये लीड कर सकता है मुझे लगता है ज्यादा बैंक निफ्टी के वजह से। आज बैंक निफ्टी में जो एक पुल आ रहा है 51,000 के सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांगली कंसोलिडेट कर रहा है, बट जो उसका एक लेवल आ रहा है और जहाँ पे सपोर्ट बैंक निफ्टी पे आ रहे हैं कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 52,000 52,500 लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी। सो मुझे लगता है एक बार बैंक निफ्टी के वजह से निफ्टी भी थोड़ा सा सेव हो सकता है। सो अभी फिलहाल निफ्टी पे कोई बाई या सेल ट्रेड नहीं रहेगा, बट मुझे लगता है बैंक निफ्टी अगर 51,800 को क्रॉस करता है तो उसके ऊपर टुवर्ड्स 52,200 के टारगेट्स खुल सकते हैं। सो यहाँ पे एक बैंक निफ्टी पे अच्छा सपोर्ट 51,500 पे है इमीडिएट बेसिस पे, और टुवर्ड्स 52,200 को एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके अच्छा, सोनी जी आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या हैं आज के? आपके 3 आइडियाज़ स्टॉक स्पेसिफिक। जी पहला बाई रहेगा यहाँ पे REC पे। REC पे हम देख सकते हैं कि आज एक रिवर्सल पैटर्न नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे आज एक अच्छे फ्रेश लॉन्ग्स पोजीशंस ऐड हो रहे हैं। सो REC फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 515 का।
पहला टारगेट रहेगा 550, दूसरा टारगेट रहेगा 560 का यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे बाई है LTIM पे। LTIM पे भी एक मुझे रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है और काफी एक अच्छे सपोर्ट को आज होल्ड कर रहा है। इंट्राडे पे भी उसने लो मारा है 5900, उसके नीचे गया नहीं है। सो LTIM फ्यूचर्स पे आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस 5900 पे ही प्लेस कीजिए। इंट्राडे टारगेट्स मुझे लगता है टुवर्ड 6020 और 6050 के लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। तीसरा आइडिया यहाँ पे एक सेल रिकमेंडेशन रहेगा। FMCG स्पेस में से बाटा इंडिया पे सेल करने की सलाह रहेगी। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न नजर आ रहा है आज डेली चार्ट्स पे 1400 के नीचे कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन कर रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। सो बाटा इंडिया यहाँ पे फ्यूचर्स पे आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1390 और एक अच्छे पोजिशनल टारगेट यहाँ पे आपको 1320 1300 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। ओके, 3 ट्रेड्स आपके हो गए यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आज इसी कार्यक्रम में एक खास बातचीत करेंगे KPIT टेक की मैनेजमेंट से अर्निंग्स के ऊपर। छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं और उस डिस्कशन के बाद फिर सस्ता ऑप्शन ट्रेड। कहिए गुड बाय। खुलते ही मार्केट उनको मुनाफा देगा जो कल लॉन्ग लेके गए। पहला सौदा CNBC आवाज पर। अक्टूबर महीने में FIs की बिकवाली भी काफी ज्यादा हुई है। मंथली नंबर कुछ 65-70 हजार करोड़ तक पहुंच चुका है, विच इज आज तक का हाईएस्ट मंथली नंबर है। अगर वैल्यूएशंस पे बात करें तो वैल्यूएशंस के ऊपर तो काफी चर्चा हो चुकी है कि मार्केट के वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल लेवल से थोड़े हायर लेवल पे हैं। ऐसे समय में जहां पे ग्रोथ और ग्रोथ की विजिबिलिटी कम होगी, उन जगहों पे रिस्क बढ़ जाता है। तो जहां पे ग्रोथ ज्यादा अच्छी से नजर आ रही हो, क्वांटम भी अच्छा हो और सर्टेनिटी भी ज्यादा हो, उन एरियाज में रिस्क रिलेटिवली कम होता है। डोमेस्टिक सिक्लिकल्स काफी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे एंड इसलिए उस स्पेस में ग्रोथ ज्यादा अच्छे से नजर आती है। मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस में जहां पे 10-12% की ग्रोथ आना मुश्किल हो रखा है, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में काफी एरियाज ऐसे हैं, स्पेशली जैसे कि पावर हुआ या प्रीमियम रियल एस्टेट है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में जैसे कि रिटेल जैसी स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसी स्पेसेस हैं और डिफेंस जैसी स्पेसेस हैं। यहाँ पे काफी हद तक ग्रोथ हायर डबल डिजिट्स में भी रह सकती है। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। कोई नई रिस्क पोजीशन ना लें इस मार्केट में अगले 2 दिन के लिए, थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करें। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। आधे % के गैप के साथ आज निफ्टी 50 की शुरुआत बढ़िया होगी 125 पॉइंट ऊपर। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे माला माल। चार्ट सेटअप भी यहाँ पे बहुत अच्छा बढ़िया बना हुआ है। ट्रेड कर रहा है 2783 पर। आई थिंक यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए मुनाफे की तैयारी। The brokerage you pay today may not seem much, but over time it can amount to a lot. Shunya by Finvesia, a brokerage-free investment platform for all. Intraday or delivery, cash or futures and options, commodities or currency. There's absolutely no brokerage. Shunya by Finvesia, trade commission free. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एक चेहरा जो मार्केट का हर मूव पहचानता है। एक चेहरा जो आपको मार्केट की बारीकियां समझाता है। एक चेहरा जिसे सिर्फ आपका मुनाफा दिखता है। एक चेहरा जिस पर पूरा इंडिया भरोसा करता है। देखिए मार्केटर्स अनुज सिंघल के साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। आ रहा है निवेश का सबसे बड़ा त्योहार। मोरा ट्रेडिंग के लिए CNBC आवाज रहेगा तैयार देश के सबसे बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको बताएंगे मुनाफे वाले ट्रेड्स और वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स, जिससे संवत 2081 में आप बने समृद्ध और खुशहाल। देखिए मोरा ट्रेडिंग सिर्फ CNBC आवाज पर। आ रहा है निवेश का सबसे बड़ा त्योहार। मोरा ट्रेडिंग के लिए CNBC आवाज रहेगा तैयार देश के सबसे बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको बताएंगे मुनाफे वाले ट्रेड्स और वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स, जिससे संवत 2081 में आप बने
समृद्ध और खुशहाल। देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ CNBC आवाज पर। 10 के दिनदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के हेल्थ केयर और फार्मा बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। 2830 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट होगा 3950, जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। 24,150 का एक जोन है, उसके नीचे अगर बंद हुए समझूंगा कि शायद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के लिए तैयार हो रहा है। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। यही एक एज ऑफ नाउ एक ऐसी पॉकेट ऑफ द मार्केट है जहां हम ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वहाँ पे चीपनेस है या वैल्यू है। लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसी सेगमेंट है जहाँ पे मतलब रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आप बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। हालांकि मतलब 12 से 15% की बुक की कंपाउंडिंग ज़रूर हो सकती है यहाँ पे। और कुछ अगर ऐसी कंपनीज है जहाँ पे वैल्यूएशन उनके लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन बैंड पे है या ऐसे कुछ बैंक्स है, तो मुझे लगता है कि उधर शायद बुक वैल्यू कंपाउंडिंग से ज़्यादा रिटर्न आपको स्टॉक प्राइस में नज़र आ सकते हैं। हम जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में ज़्यादा प्रॉब्लम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स की रही है। सिस्टम में डिपॉजिट्स की किल्लत रही है और कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा रही है। उस हिसाब से मार्जिन की कंप्रेशन। ब्रेक के बाद आपका कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब एक काम करते हैं, जो है ये KPIT टेक्नोलॉजीज़ की मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। एक बार KPIT लेके आइएगा प्लीज़। जो अर्निंग्स के बाद जो कमेंट्री थी कंपनी की, आउटलुक जो शेयर किया, उसके बाद सुबह इनिशियली एक प्रेशर था और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त करीब 12% की गिरावट है। एक सब्सटेंशियल लॉसेस हैं यहाँ पे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज प्रिया हार्डिकर मौजूद हैं, CFO KPIT की। मैं नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं थोड़ा सा इस डिस्कशन को इस चीज़ से शुरू करना चाहूँगा। आई मीन नंबर्स तो मोर लेस हमने रीड कर चुके ही हैं, बट स्पेशली कुछ जो यूरोपियन ऑटो मेकर्स हैं उन्होंने जो अपनी गाइडेंस है और जो अपना आउटलुक है वो काफ़ी एक सब्सटेंशियली रिड्यूस किया है। क्या इससे ओवरऑल आपको जो एनवायरनमेंट है सेकेंड हाफ के लिए लग कैसा रहा है इस मद्देनज़र, स्पेशली इन ऑटो मेकर्स द्वारा जो गाइडेंस कराई है उसको रिड्यूस किया गया उसके बाद? अगर आप ओवरऑल एनवायरनमेंट देखेंगे, जैसे कि US में हो या यूरोप में हो, हमारी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो एक तरह से टेंटेटिवनेस आ गया है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि ये एक तरह से थोड़ा सा दबाव है या कोई डाउन टर्न है, ऐसे नहीं है। एक तरह से थोड़ा सा टेंटेटिवनेस आया है जो हमें भी महसूस हो रहा है। हमारा जो एक रेवेन्यू गाइडेंस हमने दिया है वो हम बोल रहे हैं कि वो बरकरार रहेगा, हमारी ग्रोथ होगी इस साल में भी, बावजूद ये टेंटेटिवनेस के सिवाय। हमारी जो कमेंट्री थी, हम बोल रहे थे कि हमने एक वक्त एक वाइडर मार्जिन दिया था ऑफ गाइडेंस 18 से 22 तक। तो हम बोल रहे हैं कि ये गाइडेंस भी हम लोग मीट करेंगे एट अराउंड 18 to 20% एट द लोअर रेंज ऑफ द गाइडेंस इज व्हाट वी आर सेइंग। वो बहुत ही एक कम मार्जिन है, सो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ होगी। ये टेंटेटिवनेस का जो एक एनवायरनमेंट है वो बहुत देर जारी नहीं रहेगा। ये जो टेंटेटिवनेस है वो आया है बिकॉज ऑफ लार्ज OEMs, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस है, व्हाट दे आर सेइंग इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, एक तरह से उनकी तरफ से जो आ रहा है उसके वजह से है। My friend Mukesh, how are you? So good. Very nice to see you. Very, very nice to see you. Please sit down. Well, you know, this morning we've been talking about AI. And the last time you and I spent time together, we were talking about AI. And the time before that, we were talking about AI. And now you could see we don't really have much to talk about aside from AI. And no one has contributed more, Mukesh, to help India become a high-tech and a deep tech India. Now, you're at the beginning of that journey. You have great aspirations. I know you have deep aspirations to help India become a deep tech industry. And what gives you that conviction, and why is artificial intelligence that moment for India? So Jensen, first let me welcome you to our city of Mumbai, a city with a large heart. We are in what is the Geo World Center, which is new, which is built by my wife. So if I don't say it's built by my wife, I was instructed to say that.
I'm at her house? Her house is bigger than your house. And I thought your house was pretty big. Just so you know, from Mukesh's house, I could see my house in California. So, and while I was listening to you, you talked about NVIDIA being an exotic place. And I was thinking that when you are in India, I've got to give you my version of what NVIDIA means to me. And I was just thinking about it backstage. There's a very important word linked, which is called Vidya, Vidya, right? And in Indian, in Hindi, as we are all determined to make the best LLM in Hindi, right? In Hindi, Vidya means knowledge. I knew I named the company right. I knew it. So everybody said, NVIDIA, what a horrible name. You will never make it. So what it means... I knew it. I stuck with it. So you can take credit for this interpretation. Gosh. No problem. Right? So it still is getting... I'm smart. It gets better, Jensen. So if we think about Vidya, Vidya is Saraswati. And Saraswati is our goddess of knowledge. So when you actually devote yourself sincerely to the goddess of knowledge and you acquire knowledge, then in our tradition, the goddess of prosperity, which is Lakshmi, follows. So what you are doing... 32 years ago, I knew this. So and now the story of NVIDIA has been revealed to all of you. So our first principles, right, are what you are driving. Thank you. Is the knowledge revolution converting into the into what I call the intelligence revolution. And that drives prosperity across the world for all the 8 billion people. And I think that what we are at the doorsteps of is the new intelligence age. And on behalf of everybody, I am very proud to have you as my friend. And welcome to India. And thank you for actually contributing to the world to bring the intelligence age in our lifetime. And hopefully, together with everybody, this can drive to more prosperity for all the 8 billion people in the world, and particularly the 1.5 billion people in India. Mukesh, it is such an honor and such a great privilege and incredible joy to be able to contribute in this way. And as you know, the IT industry of India is world-renowned for its very large scale and not just in size, but in deep expertise of computer science. Very few countries in the world has this natural resource, this amazing natural resource called IT and computer science expertise. In the last couple of years, we've been working together to upskill, and we've now upskilled about 200,000 IT professionals into the world of AI. You know, what do we have to do together, and how can we work together to help transform India at the speed of light, really? Because everything is moving so fast. To transform India into a center, not of just IT, but a center of AI. So, from my point of view, Jensen, let me tell you my own experience in India. First, right, as our Prime Minister has said, that this is a new aspirational India. What we have today
is we are among the only country in the world where the average age of 1.4 billion Indians is below 35. So what is driving our economy is not only new technologies like AI, but also aspirations. And I believe that, you know the Prime Minister, and I believe that his leadership in terms of converting India to a premier digital society has been vital and continues to drive activity at the ground level. So it's demography, it's leadership. The third factor is that we as Indians have the raw talent. You talked about converting 200,000 people into this, but I believe there are millions, right? If we now see India has become home, right? Among all the companies across the world, our fastest growing industry is global competency centers. So we do space research in India, we do pharmaceutical research in India. I'm sure that you're thinking of building chips in India. That's right. We are in our own energy industry, we do bioenergy industry. All the energy majors, Shell, BP, right, actually do their innovation in India. So India is fast becoming an innovation hub for the world in terms of where we are and not the manufacturing hub. And so you know, we have over 10,000 engineers here in India ourselves. So that's like our challenge. What we also have is, we also have what I call the necessary infrastructure, and we've been fortunate that we have the connectivity infrastructure, which is equivalent to the roads. So if you don't have roads, you will not reach your destination. So I believe that today, apart from the US and China, right, India has the best digital connectivity infrastructure, 4G, 5G, and broadband in the world. Yeah. Right. When people talk about Geo, and you know, we said Geo took India from number 158 in the world to number 1 in the world in 8 years. We, as a single company, didn't know anything about this domain, right? But today, we are the largest data company in the world, right? Yeah. Our volumes are equivalent to AT&T, T-Mobile, and Verizon combined. Yeah. So I would say size of local market is quite an advantage. But let me tell you, like, the most satisfying piece, and well, having 1.5 billion customers would do it. The best part's still coming. That's pretty satisfying. So the most satisfying piece is that as Geo, we delivered about 16 exabytes of data this year, or we will deliver this year, and the average, in the US you pay $5 a GB. In the world average for data is about $3.50 a GB. In India, Geo delivers data at 15 cents a GB. And what that means is... Do you encourage your customers to use their phones? We do. And what really that means, Jensen, is a perpetual value. Yeah. Right? That technology has delivered customer value of between $500 and $700 billion a year on year, every year, to Indians. And this is the gift of technology to the people of India. And this is what,
right? What you described as intelligence, we can do to actually bring prosperity to all the people and bring equality to the world. And that is the opportunity, why I described this. Yeah. And this is the reason that India will be one of the biggest intelligence markets. And it's not only our aspirations, but I think it is just the raw gene pool and the raw gene power that exists in India, the youth power that exists in India, that is actually going to drive intelligence, and hopefully once we drive intelligence for our domestic market, right? We will use intelligent services beyond software to integrate with the rest of the world. That's right. And Indians now will not only export CEOs to the world's largest companies, but hundreds of millions of Indians. It's true. It's true. All of my colleagues, all of my friends back home, they're all Indians. All of my CEOs. And hundreds of millions will deliver to the world AI services to help a better world. And that is why your being here, thank you, right, is important. Your commitment to this country is important, and working together, right? This cannot be done by any one company, any one individual, but we all have to work together to bring this intelligence age safely to the world so that we can create a more equal world, a prosperous world, and allow the global south to catch up with the rest of the world. Yeah, that's really terrific. And you know, one of the things that you've highlighted is just the immense amount of digital data that's available, surely at Geo and in India. And this leads to one of the things that I want to announce with you. As you know, in order to lead in artificial intelligence, you need to have AI model technology that India has. You need to have data, massive quantities of data. And using the last thing you need is AI infrastructure. And we're announcing that Reliance and NVIDIA are partnering to build AI infrastructure here in India. Absolutely. And then the thing that I will say is that in order ultimately to create that into a flywheel is one of the great advantages that India has, which is a very large population of users. And so now you have the fundamental ingredients, AI, data, and AI infrastructure, and you have a large population of users that ultimately creates your AI flywheel. The thing that I really love, and when I met Modi ji, the first time he asked me to meet his cabinet was this has got to be about 6 years ago. He asked me to address his cabinet about artificial intelligence. And I was so surprised. It was literally the first time any government leader, any national leaders asked me to address his cabinet on this particular topic. It was long before anybody was talking about artificial intelligence. And my last visit with him, he said this, and it was really quite profound. He said, I was explaining to him the concept of AI infrastructure and why it's essential for every nation to have their own AI infrastructure, like their own communication, their internet infrastructure, their roads, like energy, of course, and of course, intelligence should be part of your infrastructure, and the manufacturing of intelligence should be part of your infrastructure. And he said this, he said, it makes complete sense that India should manufacture its own AI, manufacture your own AI. You should not outsource, you should not export data to import intelligence. That India should not export data to import intelligence. And he said... Absolutely.
And Modi ji said, it's like India should not just export flour to import bread. We should add value to the data ourselves. And the partnership that we have is to start that journey, to build the underlying infrastructure so that India could have your own infrastructure. You surely have your own computer science expertise. And you also have your data. You have a giant population of users to drive that flywheel. And then one more comment. This is the thing that he was most inspired by 6 years ago. He said that artificial intelligence has the ability to elevate the entire population of India. And the reason for that, I was talking earlier to him about the fact that there are so few people in the world who knows how to program a computer. Programming is not easy. Here in India, it's the largest population of any programmers in the world. However, still programming is not easy. Most people don't know how to program Python or C++ or Pascal or Fortran or Java, but everyone knows how to program an intelligence. And so the ability to program computers is available to a small population, but the ability to program AI is something that everyone can do. And if AI could be put into the hands of every citizen, it would elevate and put into the hands of everyone this incredible capability you and I get the benefit from, called computers. And this computer could now benefit everybody in society. And now he explained that back to me. Yeah. Absolutely. And I think that is why I started by saying that we are very fortunate to have a visionary leader who believes not only in vision, but in execution. Yeah. And Jensen, where I see our partnership and is really, in a sense, I was waiting for your GB200s to mature, because like you, from first principles, I don't like doing anything but the best technology. And now your GB200, right, is undoubtedly the best technology. Mukesh, I'm looking forward. All of my technology is the best technology. India, including the next one. India will start with what is the absolute best that you have. And I'm happy to, like what we are doing at Jamnagar is we are now ready for big scale up. So we are building infrastructure, right? And we think big, so we're building infrastructure for 1 gigawatt, which can be expandable to multiple gigawatts at one location. We already have the green power so that we are not dependent on anybody else for power. We are building this so that we can scale this, and as your multiple order of magnitude technologies come, we will build our infrastructure, and one important piece that I believe is important is that for India and Indians, right, we have to repeat a geo for intelligence to be really affordable, available to the common people. Yeah. And towards that, it is important that we design and build infrastructure so that to use AI, our customers don't have to change a phone, don't have to change their computers, but they can still get good quality AI, and we take the burden of putting that infrastructure together. Yeah. And I think that is what we are counting on you and us to do. On top of that, right, I have, again, great respect for my friend Mark Zuckerberg, because by bringing open source to the world of intelligence, he has given,
everybody the opportunity to participate in this revolution. Yeah, and Llama be 3 has state of the art. activated every single company, every single industry around the world. It's incredible. And what you have done with Llama 3 also, right? Thank you. Is, and all of us, we can build on top of that. And to my mind, this move of Mark will be written in the history, right? When we look at it 100 years from now, that open source, all the big things in the world have helped on open source. Linux was open source. And I think that at least from an India point of view, right, we can use Llama as a base model. It allows all of us to develop on top of a state-of-the-art model, and surely then we can fine-tune, train, retrain, do everything else. And I am sure that there is somebody in this audience who is very bright and very young, and we will have, right, into the future, an Indian model, right, as you very rightly said, which might be 10x of Llama. And that will happen from India, and I hope and pray that our young people will do that. But to start off with, open source is great. That's right. On top of that, right, all your tools. So the Foundry tools that we have, we are looking forward to a development center where we take core of your tools and train hundreds of thousands of developers in India to use all the enterprise tools, to use the Omniverse tools, so that we can really apply intelligence in a practical way. And to me, this is just the starting of this intelligence age. It's a multi-decadal journey. Mukesh is talking like an engineer. You guys, listen to him go. He's starting to sound like a 28-year-old engineer. What do you guys think? I like it. I like it. And that's why that's awesome. That's what we're going to do together. That's true. I can assure you Thank that you. like we did in data, in a few years from now, right, we will surprise the world with what India and Indians can achieve in the intelligence market. Thank you. Mukesh, it will certainly we would agree that this is an extraordinary time for the world. And this is an extraordinary opportunity for India to have precisely the conditions, to have such a large population and large industry of computer scientists at a time when this industry, the computing industry, is going to become the intelligence industry. Leveraging on everything that you have, leveraging on everything that you know, and your indigenous advantage, enormous amounts of data, a large population of consumers to drive that flywheel of intelligence to data, data to intelligence, intelligence to data, and have the national will to go do something about it. This is such an extraordinary time, and I am honored and privileged to be partnered with you to do this. And let's make it a promise today that we will work together so that India could take advantage of the intelligence revolution that's ahead of us. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so very much. Thank you. Ladies and gentlemen, Mukesh Ambani. Thank you. Thank you. Thank you. And Jensen, my friend, right? You are here only a few days before Diwali. Diwali is our new year. It is where we worship the goddess of prosperity. So on behalf of all of us, we wish you a very, very prosperous new year, and to all of you, a happy Diwali and a happy Diwali, everyone. Thank you. Thank you, my friend. Thank That was good. Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.
In the jungle of equity opportunities, spotting big and small. Trust MF Small Cap Fund. NFO period 11th to 25th October 2024. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. आ रहा है निवेश का सबसे बड़ा त्योहार। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए CNBC आवाज रहेगा तैयार देश के सबसे बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको बताएंगे मुनाफे वाले ट्रेड्स और वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स, जिससे संवत 2081 में आप बने समृद्ध और खुशहाल। देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ CNBC आवाज पर। 10 के दिनदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के हेल्थ केयर और फार्मा बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। 2830 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट होगा 3950, जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। 24,150 का एक जोन है, उसके नीचे अगर बंद हुए समझूंगा कि शायद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के लिए तैयार हो रहा है। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। यही एक एज ऑफ नाउ एक ऐसी पॉकेट ऑफ द मार्केट है जहां हम ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वहाँ पे चीपनेस है या वैल्यू है। लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसी सेगमेंट है जहाँ पे मतलब रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आप बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। हालांकि मतलब 12 से 15% की बुक की कंपाउंडिंग ज़रूर हो सकती है यहाँ पे, और कुछ अगर ऐसी कंपनीज है जहाँ पे वैल्यूएशन उनके लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन बैंड पे है, या ऐसे कुछ बैंक्स है, तो मुझे लगता है कि उधर शायद बुक वैल्यू कंपाउंडिंग से ज़्यादा रिटर्न आपको स्टॉक प्राइस में नज़र आ सकते हैं। हम जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में ज़्यादा प्रॉब्लम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स की रही है, सिस्टम में डिपॉजिट्स की किल्लत रही है और कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा रही है, उस हिसाब से मार्जिन की कंप्रेशन ज़्यादा रही है। तो मुझे लगता है कि द सेकेंड फेज जहाँ वी स्टार्ट सीइंग सम बेटर लिक्विडिटी इन एनी केस दिख रही है, और कॉस्ट भी अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स भी अगर हम मॉडरेट होते हुए देखें तो शायद that can act as a possible a positive trigger. मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। बहुत ही शानदार ट्रेडिंग सेशन, खास तौर से अगर आप एडवांस क्लाइंट को देखें। इस मार्केट में अब लॉन्ग बने रहें। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। याद रखिएगा, एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग एक्सपेक्ट करना वो मुश्किल है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ स्टॉक डे हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हुए हैं। 331 यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए कमाई का अड्डा। आपको अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बस होल्ड करना है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देख के यहाँ पे कोई रणनीति मत बनाइए, शॉर्ट जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ। इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 182 का एंड स्टॉप लॉस 174.35। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। खुलते ही मार्केट उनको मुनाफा देगा जो कल लॉन्ग लेके गए। पहला सौदा CNBC आवाज पर। अक्टूबर महीने में FIs की बिकवाली भी काफी ज्यादा हुई है। मंथली नंबर कुछ 65-70 हजार करोड़ तक पहुंच चुका है, विच इज आज तक का हाईएस्ट मंथली नंबर है। अगर वैल्यूएशंस पे बात करें तो वैल्यूएशंस के ऊपर तो काफी चर्चा हो चुकी है कि मार्केट के वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल लेवल से थोड़े हायर लेवल पे हैं। ऐसे समय में जहां पे ग्रोथ और ग्रोथ की विजिबिलिटी कम होगी, उन जगहों पे रिस्क बढ़ जाता है। तो जहां पे ग्रोथ ज्यादा अच्छी से नजर आ रही हो, क्वांटम भी अच्छा हो और सर्टेनिटी भी ज्यादा हो, उन एरियाज में रिस्क रिलेटिवली कम होता है। डोमेस्टिक सिक्लिकल्स काफी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे, एंड इसलिए उस स्पेस में ग्रोथ ज्यादा अच्छे से नजर आती है। मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस में जहां पे 10-12% की ग्रोथ आना मुश्किल हो रखा है, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में काफी एरियाज ऐसे हैं, स्पेशली जैसे कि पावर हुआ या प्रीमियम रियल एस्टेट है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में जैसे कि रिटेल जैसी स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसी स्पेसेस हैं और डिफेंस जैसी स्पेसेस हैं। यहाँ पे काफी हद तक ग्रोथ हायर डबल डिजिट्स में भी रह सकती है। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। कोई नई रिस्क पोजीशन ना लें इस मार्केट में अगले 2 दिन के लिए, थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करें। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। आधे % के गैप के साथ आज निफ्टी 50 की शुरुआत बढ़िया होगी 125 पॉइंट ऊपर। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे माला माल। चार्ट सेटअप भी यहाँ पे बहुत अच्छा बढ़िया बना हुआ है। ट्रेड करा है 2783 पर। आई थिंक यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए मुनाफे की तैयारी। एक चेहरा जो मार्केट का हर मूव पहचानता है,
एक चेहरा जो आपको मार्केट की बारीकियां समझाता है, एक चेहरा जिसे सिर्फ आपका मुनाफा दिखता है, एक चेहरा जिस पर पूरा इंडिया भरोसा करता है। देखिए मार्केटर्स अनुज सिंघल के साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। आ रहा है निवेश का सबसे बड़ा त्योहार। मोरा ट्रेडिंग के लिए CNBC आवाज रहेगा तैयार देश के सबसे बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको बताएंगे मुनाफे वाले ट्रेड्स और वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स, जिससे संवत 2081 में आप बने समृद्ध और खुशहाल। देखिए मोरा ट्रेडिंग सिर्फ CNBC आवाज पर। 10 के दिनदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के हेल्थ केयर और फार्मा बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है। बहुत ही बढ़िया। वो फायरसाइड चैट आपने अभी सुनी थी। गजब इन डेप्थ नॉलेज होती है एक्सपर्ट्स की क्या, इंडस्ट्री वेटरन्स की। मुकेश जी कहाँ ऑयल एंड गैस बिजनेस संभालते आज की डेट में, क्या अपडेटेड में सुनते सुनते मज़ा आ रहा था मुझे। आपको भी आई एम श्योर आया होगा। खैर बहुत ही बढ़िया वो चैट। इस समय हमारे साथ निर्मल बंक सिक्योरिटीज़ की स्वाति होतकर स्क्रीन्स पे जुड़ती हुई। स्वाति हाय, गुड आफ्टरनून। सॉरी थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूँ आपके पास। मार्केट ज़रा स्क्रीन्स पे रखिए, है फ्लैट लेकिन भाई साहब अच्छे खासे हिचकोले खा रहा है। शुरुआत में ठंडे पड़े थे, फिर दिक्कत दिख रही थी, 340 तक गिरे, उससे फिर रिकवर हो गया। अब लार्जली कल के क्लोज के आसपास इस समय हम कामकाज कर रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा तब हो रहा है जब निफ्टी बैंक बढ़िया 3/4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, तब निफ्टी का ये हाल है। तो इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाई, जब इंडेक्स की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़िया कर रहा, इनफैक्ट 3/4% उछाल के साथ है, तो निफ्टी क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा? सबके जहन में सवाल आना चाहिए। आए दिन कुछ ना कुछ पिटने आ जाता है। आज HUL ITC ये FMCG पैक करेक्ट कर रहा है, और HUL तो गजब का है। इंडिविजुअल स्टॉक स्क्रीन्स पे रखिएगा HUL का। मतलब डिसअपॉइंटिंग नंबर थे, तो अब मैंने सुबह मेंशन भी करा था, हमारे चैनल पे बातचीत भी हुई थी, पर 7% HUL गिर गया। 4 से 5% वॉल्यूम ग्रोथ के सामने 3% वॉल्यूम ग्रोथ आई। एक वो डिसअपॉइंटमेंट था। हेडलाइन आंकड़े एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थे लार्जली, पर पनिशमेंट देखिए स्टॉक्स की, कोई एरर का रूम नहीं है। खैर स्वाति भाई, निर्मल बंक का व्यू क्या बन रहा है मार्केट्स को लेकर, निफ्टी को लेकर? कैसे अप्रोच कर रहे हो आप लोग? हम सब रिटेल तो जानना चाहते हैं मैडम, कब खत्म होगा ये सब, कहाँ जाके थमेगा? आप लोग का आकलन क्या कहता है? आप लोग की चार्ट्स वार्ट्स में सब टीम ने बैठ के डिटेल स्टडी करी होगी, कहीं पे तो कॉन्फिडेंस होगा कि ये लेवल ब्रीच नहीं होगा या इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। क्या रीडिंग आप लोगों की? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीष जी। डेफिनेटली हमारा व्यू